Students. So let me share the screen. All right. So in the last class, we talked about full costing, right? This is one of the method to charge cost to the profit centers and the cost centers of the business. So we talked about how, and in this method, we actually learned that how direct costs are apportioned. It's easy because they can be identified with each product, but total overhead, that is fixed cost, is also apportioned to the products. It is also charged to the products based on direct labor cost. And generally, direct labor cost is taken as basis. But if in the question they ask you to take the raw material as the basis or the material cost as the basis, you can take it at that as well. So I demonstrated it to you how to apportion overheads to each product. All right. So now, yes, we did that example as well earlier. Now, evaluation. Let's talk about this as well. Evaluation of full costing. सर आप एक बार वो एग्जांपल समझा देंगे जो आपने पीछे करवाई थी? वो एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा करता हूँ कि समझा दूंगा जल्दी से, क्लास के एंड पे मैं बच्चों को भेज दूंगा ना, आप क्लास में रहिएगा, ठीक है? ओके क्योंकि सर, हम थैंक यू। जी हम क्योंकि नेक्स्ट मेथड पे भी जाने लगे हैं, वो दैट इज द लास्ट मेथड. तो इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड. यस, कि फुल कॉस्टिंग जो है ये एक बहुत आसान तरीका है ना कि आप टोटल कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट पे चार्ज कर देते हैं, तो यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट ना, एंड इट्स क्वाइट सिंपल द कैलकुलेशन. So then relevant for single product business, yes, but because if there's one product, so it's easier to charge cost to it. Like for example, you manufacture ready-made garments, right? So you pay rent of the building, so you can charge rent to all the clothes you manufacture, right? But think about if there are too many products you produce, so then it becomes difficult to charge fixed cost to those products as well. Do you know why? Because that won't be accurate, huh? Because for example, you produce three of the products A, B, C. So sometimes A consumes most of the day's time. Sometimes B consumes most of the day's time, and sometimes C takes more time in the day to be produced. So in that way, more of the building is used sometimes by A, sometimes by B, and sometimes by C. So if you charge cost to these products on even on the basis of even equally, that won't be accurate. And if you actually, let's say, do it on the basis of labor cost, still I think it won't be accurate. Reason is because you cannot actually charge the fixed cost every time on the basis of labor cost. Reason is because sometimes I just mentioned that product A is taking more time, sometimes product B is taking more time, sometimes C. So then it becomes difficult that you cannot change the basis every now and then, because once you decide about the basis, direct labor cost, let's say it is 30%, labor cost is charged to one of the product. So you take 30% of the fixed cost and you charge it to the product as well. But if it keeps on changing, as I told you, then it becomes difficult uh, to change the basis, because once you take a certain percentage of the basis, you will use it again and again. And that is why for multiple products, those businesses who deal in that, it is difficult to charge fixed cost to each product as accurately as possible. Then all costs are allocated. Yes, that is an advantage. So but for relevant, okay, so that is one of the advantage, that now they actually charge fixed cost plus variable cost to each of the products. So now you actually know what is the total cost of the product, because in the other method which we are going to discuss now, all costs are not charged. We'll discuss it in the next slide. Then advantages provides good basis for pricing decisions for single platform. Yes, that's right. Yes, if you deal in one of the product, and because you charge all of the cost to the product, fixed plus variable, so you find it easier to decide about the reasonable price, because you have to charge a reasonable or a comparative price, because if you charge too high, the customer may buy from your competitors. If you charge too low, so it may affect your profits. So so but because it
full cost is charged to the product, so it becomes easier to set a reasonable price for the product. Okay, then there are disadvantages as well. Allocation of overheads cost is not on the basis of actual expenditure. Yeah, that's right. Because we always take the basis to do it, right? And direct labor cost. So for example, if one of the product is actually consuming more of the labor, right? But that product is actually produced only in the morning. So it means that the product is not actually making use of the whole building the whole day, but more of the labor is actually used for that product. So what you will do, you will actually take so there will be higher percentage of the total labor cost, right? On in producing that product. Huh? So if we use the same percentage as we did earlier for allocating fixed cost as well, so that will be misleading, no? Because fixed cost should be smaller because you are just producing it in the morning only. So rest of the day, the product is not produced. So how can you actually charge rent, a major portion of the proportion of the rent to that particular product? Just on the basis of direct labor cost, because more of direct labor cost is used for that product. So for that, that is why whatever overhead cost you charge to a product, that is fixed cost, that is not representing the actual expenditure on that product. It can lead to inconsistencies between departments and products as well. Do you know how? Um, because inconsistencies in a way that you have to use the same basis. If you are not using the same basis, then obviously the cost will not be the same. Okay, I mean, like, because you are not using the same. एक जगह direct material की basis इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जगह direct labor की इस्तेमाल कर रहे हैं. So if throughout the business the same basis is not used, inconsistency होगी. क्योंकि और if you keep on changing the basis, एक दफा direct material इस्तेमाल कर लिया, अगले साल direct labor इस्तेमाल कर लिया, या अगले batch में, तो उससे sometimes you feel that your cost is higher, fixed cost is higher, या एक product की cost ज़्यादा है या कम है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा. दिस इज व्हाट वी कॉल इनकंसिस्टेंसी. बिकॉज अगर आपने एक बेसिस इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसी को इस्तेमाल करना है. बट ऐसे होता नहीं ना, आप कोई भी बेसिस इस्तेमाल कर लेते हैं, स्पेशली डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो उसमें फिर ये कॉस्ट जो है ना वो फिर वेरी करेगी, डिफरेंट आएगी, जो कि मिसलीडिंग होगी कि यार ये कॉस्ट ज्यादा कैसे हो गई या कम कैसे हो गई. वो एक्चुअली ज्यादा या कम नहीं हुई, वो आपने बेसिस चेंज किया जिसकी वजह से एक दफा फिक्स कॉस्ट कम चार्ज हुई है एक प्रोडक्ट को, और एक दफा फिक्स कॉस्ट ज्यादा चार्ज हो गई एक प्रोडक्ट को, जिसकी वजह से आपको कॉस्ट एक प्रोडक्ट की ज्यादा या कम लग रही है. तो अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम. देन कॉस्ट फिगर कैन बी मिसलीडिंग. Yes, the total cost of the product, you say that the cost of the total cost of the product is this much. Actually this is not the actual cost, na? You have used a certain basis to allocate the fixed cost. Again, we have discussed that as well. Now, year-to-year comparison becomes difficult if same basis is not used. Now, I have already mentioned it, that if one year you have used one of the bases and the other year you change the basis, for example, you use direct material cost, so then you cannot compare both of them. Like, for example, next year you see higher cost, so you cannot say that our cost has increased. No, why? Because you have changed the basis. So maybe that higher cost which is being shown, that is just because of the change in basis, कि आपने direct labor of cost को की basis use करने के बजाय direct material की use कर ली, तो ये एक problem और आ जाता है. Average cost will only be accurate if actual level is equal to the one used in the calculation. Right? Now what does it mean? Average cost आपको पता क्या होती है? Cost of producing 1 unit, right? So it will only be accurate if actual level is equal to the one used in the calculation. Like for example, आप direct labor इस्तेमाल कर रहे हैं, okay? तो आपने उसमें कहा जी अच्छा 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे. मैं आपको एग्जांपल, अच्छा मैं आपको दे देता हूँ एग्जांपल यहाँ पर, so that it will be clear to you. मैं आपसे कहता हूँ कि लेट्स से जो ईयर 1 था, तो उसमें ईयर 1 उसमें लेट्स से जो आउटपुट प्रोड्यूस हुई है वो है 10,000. ठीक है, उसमें आपने और 2 प्रोडक्ट्स थे आपके पास फॉर एग्जांपल, लेट्स से, और उस पे आपकी जो डायरेक्ट लेबर लगी है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट लेबर को बेसिस बना रहे हैं, फर्ज किया, तो डायरेक्ट लेबर जो ए पे लगी है ना, डायरेक्ट लेबर जो ए पे लगी है फॉर प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट्स, वो है फर्ज किया इस पे 30% लगी है.
ओके, और जो बी है उस पे आपकी बाकी 70% लेबर कॉस्ट लग गई है। फाइन, ये पॉसिबल है। अब क्या हुआ, अब इन ईयर 2 फॉर एग्जांपल यू यूज द सेम बेसिस, नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब आपने अच्छा इसकी बेस पे ना आपने एवरेज कॉस्ट निकाल ली अपनी, डायरेक्ट लेबर आपने इस हिसाब से इस्तेमाल की है, तो आपने जब ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आपने वहां पर भी जो कॉस्ट डाली है ओवरहेड की वो 30% डाल दी है ए पे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और 70% आपने डाल दी है बी के ऊपर, राइट। एंड ऑन दैट बेसिस आपने टोटल कॉस्ट निकाल ली है। मैंने कल भी इस बारे में बात की थी, ठीक है। इस बेसिस पे आपने लेबर कॉस्ट या ओवरहेड को, और अगर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी है अगर बीच में, तो वो भी आपने ऐड करके आपने टोटल कॉस्ट यहाँ पर निकाल ली है, ठीक है। एक मिनट, ये टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है जी। तो अब यहाँ टोटल कॉस्ट जो भी आई है फर्ज किया, तो आप उसके बेसिस पे एवरेज कॉस्ट भी निकाल सकते हैं ना जी। एवरेज कॉस्ट तो आपको पता है कि कैसे निकलती है, टोटल, सही नहीं लिखा जा रहा, हाँ एवरेज, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। इससे आप वाकिफ हैं कि एवरेज कॉस्ट जो है वो ऐसे आती है ना, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, आउटपुट के साथ ही आनी है ना वो तो, कि जी हमारी इतनी कॉस्ट आ गई। ठीक है, मैं एग्जांपल है कि जी टोटल कॉस्ट जो आ रही है फर्ज किया, ये एवरेज कॉस्ट किसकी है, ए की, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए। मैं एग्जांपल एक आपको लेके बता रहा हूँ। वो हमने टोटल कॉस्ट ए की निकाल ली, फर्ज किया कि जो टोटल कॉस्ट है वो ए की है लेट्स से 10,000, ठीक है। या मैं चलें और चेंज कर देता हूँ 40,000 कर देता हूँ। ए की तो मैं यहाँ पे जारी बात है 40,000 रखूंगा, सारी कॉस्ट इसमें ऐड कर दी और डिवाइड कर दूंगा उसको। आउटपुट अगर ये ए की है, ठीक है ना, आउटपुट 10,000 ये किसकी है, फॉर प्रोडक्ट ए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आउटपुट ए की कितनी ले रहा हूँ जी, 10,000। तो ऑब्वियसली बात है मेरा आंसर तो आ जाएगा कितना जी, 4, कि मेरी जी 4 रुपीज या $4 जो है ना मेरी कॉस्ट है यहाँ पर। लेकिन अब आपने ईयर 2 में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप ईयर 2 में कहते हैं हम यही बेसिस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यही वाली बेसिस कि जो 30-70 वाली हमें नजर आ रही है ना, 30-70 वाली। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उसमें जो आउटपुट प्रोडक्ट की बन रही है ना, आउटपुट प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए, वो इस केस में सिर्फ 5,000 बनी है बिकॉज ऑफ द एनी रीजन, के ऑफ पीक सीजन था या डिमांड नहीं हुई ज़्यादा, ठीक है। तो अब उस केस में क्या हुआ कि वो जो ए और बी थे ना, मैं यहाँ पे ए और बी जो प्रोडक्ट आप बना रहे थे वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की चेंज हो गई। वो क्या हो गई कि अब 40% लगा है, या 40 मैं कह रहा हूँ, आप कह लें कि 60% ए पे लग गया। ए पे कह रहा हूँ, ए पे तो कम होना चाहिए, ए पे मैं कहता हूँ 20% हो गया। क्यों? क्योंकि ए की डिमांड कम है ना, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं लग रही। तो बी की डिमांड हो सकता है ज़्यादा हो, हमने उसको 80%, तो इस तरह हुआ है कि अगले साल ईयर 2 में लेबर 20% ए पे लगी है लेबर की कॉस्ट, और 80% बी पे लग गई है। तो अब अगर अब हमने तो बेसिस वही, अब ये तो बेसिस चेंज हो गई। अब हम 30-70 कैसे इस्तेमाल करें? ठीक है, अगर हम 30-70 इस्तेमाल करेंगे तब तो हमें समझ आ रही है। अगर हम 30-70 इस्तेमाल नहीं करेंगे और अब हम चेंज करना पड़ेगा, 80-20 करना पड़ेगा, 80-20 करना पड़ेगा, तो आपकी कॉस्ट जो एवरेज कॉस्ट है वो फिर डिफर हो जाएगी। क्योंकि अब एक प्रॉब्लम ये है कि आपकी आउटपुट डिफरेंट आ गई है। पहले जो आपने एवरेज कॉस्ट निकाली हुई है, ये निकाली है 10,000 यूनिट्स के ऊपर ना, और उस 10,000 पे 30% और 70% की आपने कॉस्ट चार्ज की डायरेक्ट लेबर वाली ओवरहेड पे, ठीक है। अब चूंकि ईयर 2 में आउटपुट सिर्फ 5,000 थी, तो अब आपकी डायरेक्ट लेबर की जो चार्ज कर रहे हैं वो डिफरेंट हो गई। तो अब इसका मतलब है कि आपकी एवरेज कॉस्ट भी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि आपने बेसिस ही चेंज कर दी है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि ये एक जो इशू मैंने आपको बताया, जो यहाँ लिखा है कि एवरेज कॉस्ट विल ओनली बी एक्यूरेट, जब लास्ट पॉइंट को आप देखें, एक्यूरेट इफ एक्चुअल लेवल इज इक्वल टू द वन यूज्ड इन द कैलकुलेशन। तो जब तक कि आप ये तब एवरेज एक्यूरेट आएगी वही वाली, कि अगर आप यहाँ पर भी वही 10,000 यूनिट्स ही ले, लेकिन भाई वो तो 5,000 है, तो वो 10,000 नहीं ले सकते ना। तो 10,000 नहीं लेंगे तो फिर बेसिस भी चेंज हो गई, तो फिर वो आपकी एवरेज कॉस्ट एक्यूरेट नहीं आएगी और कंपैरिजन भी आप नहीं कर पाएंगे। ओके, ऑल राइट। तो ये आपको लिखना ही था, ऐसे बहुत डिटेल में बताना नहीं था, लेकिन मुझे आपको बताना पड़ा क्योंकि मुझे आपको समझ आ जाए अच्छे से। ओके, ऑल राइट, देन we can talk about now the new
costing method, because there are only two costing methods involved there. One is full costing, the other is contribution costing, right? Okay, just a minute, because now there are 27 students, so let me again take a screenshot so that I'll see that, okay, these are the students who are there in the class. Now, marginal costing, or another name given to it, is contribution costing. Contribution you understand, हाँ, AS में भी आपने पढ़ा हुआ है ये, तो इसमें हम क्या करते हैं, we do not charge fixed cost to products, यानी कि हम कॉस्ट सेंटर्स और प्रॉफिट सेंटर्स पे फिक्स कॉस्ट या ओवरहेड को चार्ज नहीं करते, बिकॉज ऑफ द ड्रॉबैक्स वी सॉ इन फुल कॉस्टिंग, कि फिक्स कॉस्ट तो एक्यूरेटली इस तरह से चार्ज होती नहीं है। फिक्स कॉस्ट को आप जो बेसिस डिसाइड करते हैं, आप उस पर चार्ज कर देते हैं, जो कि सही करेक्ट वे नहीं है, क्योंकि वो एक्यूरेटली तो कॉस्ट को नहीं दिखाएगी हर प्रोडक्ट की। तो इसमें हम ये जो फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि वो टोटल होती है, वो इट इज डिफिकल्ट टू चार्ज टू ईच प्रोडक्ट, तो हम उसको चार्ज ही नहीं करते टोटल प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये इसके अंदर हम करते हैं, और सिर्फ जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है उसको चार्ज किया जाता है। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि कैसे करते हैं हम। कंट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू गेन एंड इट्स मार्जिनल कॉस्ट, right? So you need to first understand this as well. In this approach, before deciding the price of a product, a certain contribution towards fixed cost is set, right? Now, and why that is why it is called contribution. It means that there is selling, actually the formula of contribution is selling price or revenue minus variable cost, and you know that you did study that in AS level as well. लेकिन जो हम यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एक ही चीज होती है, इसलिए कि मार्जिनल कॉस्ट होती है दैट द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल प्रोडक्ट, ऐसे कह लें। तो ये जो कॉस्ट बढ़ रही है, ऐड हो रहा है, ये ऑब्वियसली बात है वेरिएबल कॉस्ट होगी ना, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ही होती है जो कि आउटपुट बढ़ने से बढ़ती है, राइट? सो वट एवर विल बी द एडिशनल कॉस्ट, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, दैट विल डेफिनेटली बी वेरिएबल कॉस्ट। वो फिक्स तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो ऐड होती नहीं है, वो तो नहीं बढ़ती आउटपुट के साथ। तो इसलिए हमने मार्जिनल कॉस्ट का वर्ड इस्तेमाल कर लिया है। तो रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट हम इसको बोलते हैं। तो अब ये मैंने लिखा भी हुआ है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, वो हम देख लेते हैं अभी। तो इस अप्रोच के अंदर हम फिक्स कॉस्ट को चार्ज नहीं करते, लेकिन हम फिक्स कॉस्ट की कंट्रीब्यूशन सेट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, वो मतलब आपको भी बताता हूँ। इससे पहले हम समझ लें कि ये डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट, ऑल्दो हमने ये डिस्कस किया हुआ पहले साल, लेकिन हम फिर कर लेते हैं। कि आप क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट आपने निकालना है, तो कंट्रीब्यूशन क्या है आप गौर करें। रेवेन्यू में से आपने मार्जिनल कॉस्ट निकाली है, और मार्जिनल कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है? ये आपकी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो प्रॉफिट तब बनेगा जब टोटल कॉस्ट निकलेगी ना इसमें से। रेवेन्यू में से जब टोटल कॉस्ट निकाल देंगे तो वील गेट प्रॉफिट, लेकिन यहाँ टोटल कॉस्ट नहीं निकल रही, यहाँ पर सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट आप निकाल रहे हैं रेवेन्यू में से। वी कॉल इट कंट्रीब्यूशन। क्यों कह रहे हैं मैं बताता हूँ। और अगर कंट्रीब्यूशन में से आप ओवरहेड भी निकाल दें, दैट इज द फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। तो प्रॉफिट ऐसे ही आता है ना कि आप रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकाल दें तो फिर प्रॉफिट आता है। तो कंट्रीब्यूशन इज नॉट सेम एज प्रॉफिट। अच्छा, इसको कंट्रीब्यूशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो रेवेन्यू में से मार्जिनल कॉस्ट निकाल रहे हैं, मैं आपको इसकी एग्जांपल एक दे देता हूँ यहीं पर ही, तो आपको ताकि और क्लैरिटी से समझ आ जाए। इसको मैं ज़रा इसमें टाइप कर दूँ। लेट्स से मैं यहाँ कहता हूँ कि हमारा जो रेवेन्यू है, मैं रेवेन्यू पर यूनिट यहाँ पर लेता हूँ। रेवेन्यू पर यूनिट के एक प्रोडक्ट को बेचने से कितने पैसे मिल रहे हैं। लेट्स से इट इज़ $10 जो हमें मिल रहे हैं, ओके। और जो इसकी मार्जिनल कॉस्ट है या जो इसकी वेरिएबल कॉस्ट है, जो भी कह लें आप इसको, वो हमारे पास आ रही है लेट्स से $5, ठीक है। इसका मतलब है हमें यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मिल रही है। कंट्रीब्यूशन जो पर यूनिट है वो हमारी आ रही है कितनी, $5। अब ये $5 क्या चीज़ है? ये कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स कवरिंग फिक्स कॉस्ट, क्योंकि हमारी हर बिजनेस की ओवरहेड होती है, ओवरहेड्स यानी कि फिक्स कॉस्ट, राइट? फिक्स कॉस्ट होती है ना, हर बिजनेस की होती है। तो वो है लेट्स से $10,000। तो $10,000 तो कवर नहीं हो रहे, और हम इसको चार्ज भी नहीं करते ना इस मेथड में। तो हम क्या करेंगे, हमें हर यूनिट से $5 मिल रहे हैं, ठीक है। तो 2 यूनिट से कितने मिलेंगे? इसका मतलब है ये जो $5 हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहे हैं, इसको कंट्रीब्यूशन क्यों कह रहे हैं?
because every product is contributing $5 to cover fixed cost. मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि यहाँ क्या मतलब है इस एग्जाम्पल में, every product is contributing $5 towards covering fixed cost, राइट? इसलिए इसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये $5 हमें ओवरहेड के मिल गए, ठीक है? ये 5 रुपए हमें ओवरहेड के मिल गए। ओवरहेड में कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, लेकिन ओवरहेड 10,000 है, तो 2 पे हमें 2 यूनिट्स होंगे तो हमें $10 की कंट्रीब्यूशन मिल जाएगी, 3 पे $15 की कंट्रीब्यूशन मिल जाएगी, 4 पे $20 की कंट्रीब्यूशन मिल जाएगी, राइट? तो इसी तरह करते-करते हम जो है वो ये कंट्रीब्यूशन हमें मिल रही है, ठीक है? और इवेंचुअली आप अगर गौर करें तो कंट्रीब्यूशन एक अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग क्यों अच्छी है? बिकॉज़ आपको बज़ाहिर लग रहा है कि यार लॉस हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है कि यार भई वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो रही है $5 की, लेकिन ओवरहेड तो नहीं कवर हो रही 10,000, सिर्फ $5 मिल रहे हैं एक पे, ठीक है ना? 1 यूनिट बनाएँगे तो आपको $5 की कंट्रीब्यूशन मिलेगी। तो एक्चुअली आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट कवर हुई है वो $5 कवर हुए हैं 10,000 में से, राइट? तो अगर आपने 2 यूनिट्स बनाए हैं तो आपकी फिर जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़ाहिर-सी बात है, वो भी $5 हर एक से मिल रही है। अब आपकी कंट्रीब्यूशन जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, वो 10 हो गई है। तो 10,000 में से फिक्स्ड कॉस्ट के $10 कवर हो गए। लेकिन स्टिल लॉस हो रहा है ना, ये लॉस ही बोलेंगे ना इसको, ये लॉस हो रहा है। तो स्टिल इन कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग इट इज़ बेटर टू रन अ लॉस मेकिंग बिज़नेस, डू नॉट स्टॉप प्रोडक्शन। उसका रीज़न है, मैं अभी आपको बता देता हूँ वो भी, क्योंकि इस पे भी सवाल आ जाता होता है। और करते-करते आपने क्या किया कि आपने 2000 प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिए, ठीक है? आपने नहीं बंद किया, तो अब देखें क्या हो रहा है आगे? आगे $5 कंट्रीब्यूशन मिल रही है आपको, तो इवेंचुअली अगर आप 2000 का टारगेट अचीव कर लेते हैं, तो आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन 10,000 हो जाएगी ना? एक चीज़ से आपको $5 मिल रहे हैं। तो अब आप गौर करें, तो आपके वो जो 10,000 हैं ओवरहेड के, वो कवर हो गए, ठीक है? वो 10,000 कवर हो गए, तो वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो गई और आपकी ओवरहेड्स भी कवर हो गई। तो दोनों कवर हो गए और उसके बाद जब आप मज़ीद और प्रोडक्शन करेंगे 2001 प्रोडक्ट की, तो अब आपको ऑटोमैटिकली प्रॉफ़िट होना शुरू होगा, क्योंकि आपकी कंट्रीब्यूशन जो थी फिक्स्ड कॉस्ट में, वो फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो गई आपकी। तो अब आपके पास जो ये $1005 आएँगे, $1005 ये द सॉरी $10,005 वो आपका कि प्रॉफ़िट नज़र आ रहा है, या $5 का प्रॉफ़िट है आपके पास, ठीक है? तो ये कंट्रीब्यूशन आपको बताइए। अच्छा, अब ये है कि ये तो ये तब होगा ना जब आप 2000 अचीव कर लेंगे। तो लेट्स से आपने 2000 अचीव नहीं किया हुआ अभी, और आप कहते हैं यार हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन हम 10 प्रोडक्ट बना रहे हैं फ़र्ज़ किया, और 5 की हमें कंट्रीब्यूशन मिल रही है और $50 हमारे हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ रही है। यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट में से $50 कवर हो रहे हैं, ठीक है? ये बेहतर है आपके लिए स्टिल चलाना, लॉस हो रहा है लेकिन स्टिल बेटर। क्यों? अगर मैं अभी मैं प्रोडक्शन 0 कर देता हूँ, ये 0 कर दूँ मैं इसको, तो 0 कर दूँ तो अब क्या होगा? अब आपकी कंट्रीब्यूशन भी 0 हो गई। बिज़नेस नहीं बंद किया, प्रोडक्शन आपने बंद कर दी है। तो अब आपके यूनिट्स कितने हो गए? 0। कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है? $5 आती थी, वो कोई नहीं आ रही, तो आपकी कंट्रीब्यूशन 0 हो गई। अब इसका मतलब है आपके फिक्स्ड कॉस्ट में से कुछ भी कवर नहीं हो रहा। 10 के $10,000 आपको खुद पे करने पड़ेंगे। यू हैव टू पे इट फ्रॉम योर ओन पॉकेट, राइट? जबकि जब आप 10 चीज़ें बना रहे थे, तो एट लीस्ट $50 तो कवर हो रहे थे ना भाई। वो $50 आपको मिल रहे थे, तो आपको अब जो $10, ये जो 10,000 की फिक्स कॉस्ट थी, इसमें से $50 कम देने पड़ रहे थे। तो ये है फ़ायदा कि अगर आपने बिज़नेस बंद करना है तो फाइन, लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन बंद करनी है जस्ट बिकॉज़ कि लॉस हो रहा है, तो ये रॉन्ग है, ये कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग कहती है, क्योंकि आपका एक्चुअली जो प्रॉफ़िट है या जो लॉस है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। अभी आपका लॉस फ़र्ज़ किया कि कितना है, ये $50 अगर निकाल दें हम 10,000 में से, क्योंकि $50 कंट्रीब्यूट हो रहे हैं ना ये 10,000 में से। ये अगर मैं 10,000 में से 50 निकाल दूँ, ठीक है? तो हमारे पास आ गया 9,050, 9,050, ये आपके कवर नहीं हो रहे, ठीक है? ले लेकिन अगर मैं वो सर 9,950। सॉरी 9,950, हाँ, मेरी मैथ ज़रा वीक है। 9,950 आपका आ गया, तो ये हमारे कवर नहीं हो रहे। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, लेकिन अगर प्रोडक्शन बिल्कुल बंद कर देंगे, तो आप देखें आपका लॉस बढ़ गया। अब ये 50 नहीं आने, अब आपको 10,000 का लॉस हो रहा है, वो 10,000 कवर नहीं हो रहे। तो अगर आपकी इंटेंशन है कि बिज़नेस आपने कंटिन्यू करना है, तो आपको प्रोडक्ट अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव हो रही है, जैसे $5 यहाँ पे हो रहे हैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, तो यू विल कंटिन्यू योर प्रोडक्शन। लेकिन अगर आपका इरादा है कि बिज़नेस को वाइंड अप करना है,
तो वो देन दिस इज अ डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि वाइंड अप करने से आपकी ओवरहेड की कॉस्ट भी खत्म हो जाएगी ना। लेकिन अगर आपने बिजनेस आपका मौजूद है, बिल्डिंग आपने ली हुई है, वर्कर आपने रखे हुए हैं, लेकिन प्रोडक्शन बंद कर दी है, तो ये रॉन्ग है अगर आपको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो रही है। ये बात याद रखिएगा, पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या लॉस हो रहा है तो बिजनेस को बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वहां सवाल है कि प्रोडक्शन को बंद नहीं करना चाहिए। आपको वो लॉस में ही चीजें, अगर लॉस भी हो रहा है तो चीजें बेचनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं बेचेंगे तो लॉस आपका ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर प्रॉफिट हो रहा है आपको तो वो बंद करने से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये मैंने बात आपको समझाई है, इसको हम यहाँ पे देख भी लेते हैं अब आगे, कि अब आप गौर कीजिए। एग्जाम्पल अब आपको देने लगा हूँ तो आपको और बेहतर समझ आ जाएगी। फर्ज किया रेवेन्यू पर यूनिट है $100, मार्जिनल कॉस्ट $70 की है, तो आपकी कंट्रीब्यूशन आ गई पर यूनिट $30 की। ठीक है, ये हमें समझ आती है, हमने अभी एग्जाम्पल भी देखी है। तो आपको क्या हो रहा है जी, हर प्रोडक्ट पे $30 कंट्रीब्यूट आप कर रहे हैं टुवर्ड्स कवरिंग फिक्स कॉस्ट। आपकी ओवरहेड जो है वो 90,000 है। ठीक है, अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं, बेशक लॉस हो रहा है, और आप 3,000 यूनिट्स तक ले जाते हैं, तो आपकी ओवरहेड भी कवर हो जाएगी। क्यों? $30 आपको हर यूनिट में मिल रहे हैं और 3,000 आप यूनिट बना रहे हैं, तो 3,000 इंटू 30 विल गेट $90,000, तो आपकी ओवरहेड कवर हो गई। आफ्टर दैट ईच एडिशनल यूनिट सोल्ड विल गिव देम प्रॉफिट। ये मैंने आपको बात बता दी है कि आप 3,000 के बाद जो यूनिट्स बनाएंगे उस पर आपको जो $30 मिलेंगे ना, वो एक्चुअली $30 आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, वो आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपकी ओवरहेड कवर हो गई वहां पर। कौन? ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, ऑलराइट। तो ये फिलहाल आप क्यों पहले जाके भाग रहे हो मेरे घर की? एनीवे, ऑलराइट, ये चलते हैं आगे हम इसको देखते हैं। बेल आप जाते हो फिर आप खुद ही कौन भी कह देते हो, तो अच्छी बात तो नहीं है ये। एनीवे, हाँ जी, अच्छा जी, ये अब इसमें आफ्टर दैट ईच एडिशनल यूनिट, ये अब आपको समझ आ गई इस बात की, ये कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग में आप क्या कर रहे हैं, आप फिक्स कॉस्ट को नहीं चार्ज कर रहे। अब आप देखते हैं आगे, ठीक है। फिक्स कॉस्ट को आपने प्रोडक्ट पे एलोकेट नहीं करना, और आपने सिर्फ ये करना है कि सिर्फ कंट्रीब्यूशन देखनी है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉजिटिवली फिक्स कॉस्ट को, तो इवेंचुअली आपको पता है जब आपकी आउटपुट बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट भी स्टार्ट हो जाएगा। इनफैक्ट इसको हम ब्रेक इवन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, यही है ब्रेक इवन। हमने पीछे पढ़ा, आज हम इसको इस तरीके से पढ़ें, जैसे ही आपकी ओवरहेड कवर होगी, आपकी मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हुई हुई है, तो आपको ब्रेक इवन अचीव हो गया, और उसके बाद आपका प्रॉफिट स्टार्ट होता है, जैसे कि आपको पता है। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देख लें। वैसे हमने इस पर बात की है। शुड अ फर्म स्टॉप मेकिंग अ प्रोडक्ट? ओके, जस्ट अ मिनट, बिकॉज ये देखें आप, सिर्फ 2 ही स्लाइड्स रह गई हैं, तो इसको हम फाइंड अप करके बस आगे और नहीं पढ़ेंगे आज, बीइंग द लास्ट क्लास बिफोर विंटर वेकेशन। तो इसको देख लेते हैं। शुड अ बिजनेस एक्सेप्ट अ कॉन्ट्रैक्ट और अ परचेज ऑफर एट बिलो फुल कॉस्ट? यानी कि अगर उनकी फुल कॉस्ट नहीं कवर हो रही, वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है और ओवरहेड नहीं हो रही और कंट्रीब्यूशन मिल रही है, तो ये सवाल है कि करना चाहिए। कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग हमें सिखाता है कि हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उससे अगर हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो या तो हमारा लॉस अगर हो रहा है तो और बढ़ जाएगा, या हमें अपनी ओवरहेड कॉस्ट सारी की सारी खुद देनी पड़ जाएगी, ठीक है, या हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा इनफैक्ट। So if it tells that if a business has excess capacity, it is better to sell a product even at below full cost. So hotels offer very low rates in off season in order to earn some contribution rather than getting nothing. तो आपको अच्छे से पता है, फॉर एग्जाम्पल हम जब नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं तो सीजन में किराया 10-10, 20 हज़ार रुपया होता है, और आम दिनों में जाएं तो एक आम रूम आपको 5-6 हज़ार का आसानी से मिल जाता है। तो एक्चुअली वो ये गेम ही कर रहे होते हैं, वो कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग का ही काम, उन्हें पता नहीं होता, लेकिन वो कर यही रहे होते हैं, उन्हें समझ नहीं होती इस बात की, कि वो ये करते हैं कि आपने स्टाफ रखा हुआ है और आप फर्ज किया बिल्डिंग भी आपकी अपनी नहीं है और आपने किराए पे ली हुई है, फर्ज किया या जमीन किराए पे ली हुई है और आपको रेंट देना है, तो आपको पता है ऑफ पीक सीजन में तो देयर आर सो मेनी रूम्स हु आर वेकेंट,
तो आपने कहा यार रूम तो वेकेंट है, तो अगर जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको अगर हम कम किराए पे नहीं देंगे और वो नहीं रहते, तो रेंट तो हमें फिर भी पूरा देना है ना। तो हर रूम जो आपका है वो एक आपका प्रॉफिट सेंटर है, आपको पता है, क्योंकि वहाँ कॉस्ट भी चार्ज होती है, वहाँ पे स्टाफ काम करता है, क्लीनिंग करता है, और उससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है जब कस्टमर से लेते हैं। तो आपको वो जो प्रॉफिट सेंटर, वो जो आपके, या तो कॉस्ट सेंटर भी कह सकते हैं, आपको पता है कॉस्ट सेंटर भी होते हैं। तो वो प्रॉब्लम ये होगी कि वो रूम्स आपके वेकेंट रहेंगे और रेंट आपका कम कस्टमर्स पे या कम रूम्स पे चार्ज होगा। तो उससे आपकी एक्चुअली आपके लिए वो कॉस्ट बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा, वो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि पर कस्टमर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आप वो जो वेकेंट रूम है ऑफ पीक सीजन में, आप उनको भी किराए पे चढ़ा देंगे, बट बाय ऑफरिंग अ लोअर चार्ज फॉर ईच रूम। जिससे क्या होगा कि आप कहेंगे चलें कंट्रीब्यूशन तो आ रही है, तो वो रूम्स आपको आपकी वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी वर्कर्स की सैलरी और आपका रेंट नहीं निकाल रहे, लेकिन उस रेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए। तो इसलिए जो ऑफ पीक सीजन है उसमें किराए कम कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैक्सिमम रूम जो है ना वो फुल हो जाए, वो फिल अप हो जाए कस्टमर से, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, माना कि लॉस होगा लेकिन कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा है, तो जो लॉस है वो कम से कम हो, या अगर प्रॉफिट भी हो रहा है तो प्रॉफिट कम ना हो हमारा, क्योंकि अगर आप जैसे ही रूम्स नहीं देंगे कस्टमर्स को, तो कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी, तो आपकी ओवरहेड जो है ना वो आपको पे करनी पड़ जाएगी। अभी तो आप कस्टमर के किराए से पे कर रहे हैं ना, जब वो कस्टमर नहीं होंगे तो फिर वो ओवरहेड आपको खुद पे करनी पड़ जाएगी, वो फिर आपका कॉस्ट मजीद बढ़ जाएगी। तो ये किया जाता है यहाँ पर काम। इसी तरह आप एयरप्लेन की बात कर रहे हैं, तो फ्लाइट्स में जाते हैं, वहाँ भी कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग इस्तेमाल होती है। जब सीजन नहीं होता, जैसे आजकल दिसंबर में, अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, वरना अदरवाइज दिसंबर के एंड पे जो टिकट की प्राइस है, आप सबको पता होगा, बहुत ज्यादा हो जाती है। ये जब ये आपका आता है, क्या कहते हैं, न्यू ईयर, ठीक है ना, न्यू ईयर में वो ईस्टर भी आ जाता है साथ में, तो वो प्राइस बहुत बढ़ जाती है ना। तो लेकिन जब ऑफ पीक सीजन होता है तो उसमें आपकी प्राइसेस बहुत ज्यादा लो भी हो जाती हैं, और यही है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा सीट्स भर लें, ताकि जो स्टाफ का किराया है, जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है एयरप्लेन की, कम से कम उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उस वक्त भी हो जब ऑफ पीक सीजन है, ताकि ये इस तरह से मैनेज किया जाता है, और ये एक इफेक्टिव वे है कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग का। तो ये अब समझ आ रहा है आपको, मैंने पढ़ दिया है। फॉर एग्जाम्पल, होटल्स ऑफर लो रेट्स इन ऑफ सीजन इन ऑर्डर टू अर्न सम कंट्रीब्यूशन रादर देन गेटिंग नथिंग, क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी तो फिर तो सारी फीस कॉस्ट आपको खुद ही पे करनी पड़ेगी ना। आपको समझ आ गई ये बात की। एक्सेस कैपेसिटी इज इफेक्टिवली यूज्ड, यस, कि वो अब आप एक्सेस कैपेसिटी का मतलब क्या है, आपने पढ़ा, हमने पढ़ा है, वो जाया नहीं होने देंगे कि यार हम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारी कॉस्ट पूरी नहीं होती, हम कस्टमर को किराए पे नहीं देंगे, जिद ही पकड़ लिए, जो कि गलत है। आप वो कस्टमर कम किराए पर रख सकते हैं, आपका ही फायदा होगा, और इस तरह एक्सेस कैपेसिटी को ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ना कि उसको खाली पड़े रहने दिया जाए, या उसको रूम्स को स्टोर हाउस बना दिया जाए। ओके, लास्ट स्लाइड है जी, डेंजर्स ऑफ अडॉप्टिंग दिस पॉलिसी। वो क्या है? पहला, कस्टमर्स में बिकम हैबिचुअल इन गेटिंग गुड्स एट अ लोअर प्राइस। यस, कि कस्टमर था, उसने रूम पहले लिया, 5,000 का मिल गया, तो सीजन में गया तो वो रूम 15,000 का हुआ था, उसने कहा भाई ये क्या मजाक है, तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम आ जाएगा वहां पर। तो आप जितना भी कहें भाई हम कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग कर रहे थे, हमारी कॉस्ट पूरी नहीं हो रही थी, हम तो कंट्रीब्यूशन पे चल रहे थे, वो कहेगा भाई केड़ी कंट्रीब्यूशन, वो तो नहीं मानेगा ना। वो तो ये नहीं भाई, आई वांट दिस रूम एट द सेम प्राइस, दैट इज 5,000 6,000, हाउ कैन यू चार्ज 15,000, यू आर लूटिंग पीपल। सो दिस विल बी डिफिकल्ट टू कन्विंस पीपल। वो तो लो प्राइस आदि हो जाएगा, फिर प्राइस बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। फिर कैन अफेक्ट, क्योंकि वो कहेगा लॉस पे कौन चलता है, वो तो ये कहेगा ना भाई लॉस पे कौन बेचता है, एक्चुअली लॉस पे चलते हैं, आपको मैंने बता दिया। तो कैन अफेक्ट द एक्सक्लूसिविटी ऑफ द ब्रांड। यस, अगर आपने कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग यूज की, इसका मतलब आप प्राइस कम कर रहे हैं, आप प्राइस कम करके कहते हैं चले यार कंट्रीब्यूशन भी हो जाए तो चलेगा। जैसे मैंने आपको एयरक्राफ्ट की एग्जांपल दी है, ट्रैवल की, या मैंने होटल की एग्जांपल दी है, तो उससे अगर कोई ब्रांड जो हाई क्वालिटी का है, उसकी एक्सक्लूसिविटी पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यार ये प्राइस कम हो गई है, इसका मतलब है कि अब इसकी क्वालिटी वो नहीं रही, तो एक ही प्रॉब्लम ब्रांड इमेज पे आ सकता है। फिर इन एब्सेंस ऑफ सर एक्सेस के पास, जी जी, सर बिजनेसेस तो वो ऑफ नहीं लगाते, यानी सेल प्रमोशन टाइप के प्राइस कम वो और करने के चीज लिए। है, वो और चीज है, वो और चीज है। वो पता क्या है, वो है, वो जो ऑफ लगाते हैं ना, एंड ऑफ सीजन सेल, वो है कि उसे बोलते हैं सेल प्रमोशन, कि यू वांट टू गेट रिड ऑफ द स्टॉक एज अर्ली एज पॉसिबल। उसमें ये नहीं होता कि आप कह रहे हैं कि चलो कंट्रीब्यूशन आ रही है, वो ये है कि अगर ये स्टॉक अभी ना बिका तो कभी नहीं बिकेगा, क्योंकि वो चीज जो है ना वो आउट ऑफ फैशन हो जाएगी। तो ये नॉर्मली आपको पता है कपड़ों के केस में, या और जो फैशनेबल आइटम्स हैं उनके केस में लगाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी से आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं, तो वो इसलिए है ताकि अभी कुछ ना कुछ तो पैसे आ जाएं, तो वो और केस है। अच्छा जी, तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सेस कैपेसिटी दिस पॉलिसी इज नॉट यूजफुल। यस,
अगर आपके पास एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, फर्ज किया आपका होटल है उसमें 10 रूम है और 10 के 10 रूम बुक्ड है, आप कहें यार हम ये कंट्रीब्यूशन पॉलिसी इस्तेमाल करेंगे, आपने एक और बिल्डिंग ले ली और कहें जी हम इस पे कंट्रीब्यूशन पे बेचेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो अलग बिल्डिंग लेने से आपका ओवरहेड मजीद बढ़ जाएगा। तो आप मजीद ओवरहेड नहीं बढ़ा सकते कि आप लॉस पे बेचेंगे और ओवरहेड भी बढ़ता जाए, ये रॉन्ग है। आपने तो कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग इसलिए इस्तेमाल की है ताकि आपका जो ओवरहेड जो कि फिक्स्ड है वो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ओवरहेड भी बढ़ जाएगा तो फिर तो आप कंट्रीब्यूशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके ओवरहेड तो कभी भी कवर नहीं होनी, तो वो फिर आप कभी प्रॉफिट में जाएंगे नहीं। तो एक्सेस कैपेसिटी अगर नहीं है तो कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग इज नॉट द बेस्ट मेथड टू यूज। कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग तभी इस्तेमाल हो सकती है जब आपके पास एक्सेस कैपेसिटी है, ताकि आप ओवरहेड कॉस्ट को कवर कर सकें और कंट्रीब्यूट कर सकें और एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो फुली कवर हो जाए। तो ये एक ड्रॉबैक है, आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर लोअर प्राइस गुड्स में लीक इन द हायर प्राइस मार्केट, यस। कि फर्ज किया आप एक जगह पर जहाँ पर डिमांड कम है, आप वहाँ पर कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं और लोअर प्राइस इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी जगह वहाँ पे पीक सीजन चल रहा है और वहाँ पे आपका आप प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं एंड योर प्रोडक्ट इज द सेम, so there is a problem. If people come to know that the same product is available at a lower price in the other market and it is approachable as well, so they will go to that market. तो आपकी अपना ही प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट को खा जाएगा, दैट इज व्हाट वी कॉल कैनिबलाइजेशन। आपका अपना प्रोडक्ट आपकी दूसरे प्रोडक्ट की सेल को गिरा देगा, अगर ऐसा हो सकता हो कि लोग जा सकते हो। ऐसा नहीं होता, जैसे कि मैं कह रहा हूँ आपसे, एंड ऑफ वो आपका जो वो क्या कहते हैं ईयर एंड पे हैप्पी न्यू ईयर जब आता है, तो उस वक़्त की मार्केट क्लैश जो है ना वो डिफरेंट है, क्योंकि कोई भी बंदा जो कि एंड ऑफ सीज़न जब सॉरी ईयर जब एंड होता है तो उस वक़्त वो ट्रैवल नहीं कर रहा होता। कई बंदे ट्रैवल कर रहे होते हैं और उन्हें करना होता है, क्योंकि उन्हें अपने घर जाना है, अपने फैमिली से मिलना है छुट्टियों में, तो वो वहाँ पर मार्केट आपस में मिक्स अप नहीं होती। लेकिन कई जगहों पर हो सकती है, अगर होगी तो फिर कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग इज़ नॉट अ गुड वे। कंट्रीब्यूशन फोकसेस ऑन कंट्रीब्यूशन रादर देन प्रॉफिट। Yes. So there is a danger of overlooking overheads altogether. Now there is a problem कि मेन फोकस क्या है कि कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव हो जाए, कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट का फोकस तो हट ही जाता है ना। फिर अब आप हर वो प्रोडक्ट बनाएंगे और बेचेंगे जिसमें आपको लगता है कि जी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिल रही है, तो एक सर्टेन पॉइंट पर प्रॉफिट हो जाएगा। माना कि ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन इसमें आपका मेन फोकस प्रॉफिट ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मेन फोकस कंट्रीब्यूशन हो जाएगा तो फिर प्रॉफिट को तो आप इग्नोर कर देंगे कि यार चलो प्रॉफिट हो ही जाएगा कभी ना कभी। तो ये भी एक सही तरीके का नहीं है, तो आपका मेन मोटिव प्रॉफिट है हर बिजनेस का। तो ये एक और प्रॉब्लम है कि ये डाइवर्ट करता है बिजनेसेस को प्रॉफिट से कंट्रीब्यूशन की तरफ, राइट। So that is the end of the chapter. We have covered this chapter as well. So any question up till now, I'm there to answer. Okay, if there is no question, you can leave because I have to just discuss it with Junaid. जी सर, मैं इधर ही हूँ। सर जी प्लीज जी फैजान। वो आपने क्या कहते हैं वीडियोस अपलोड ही नहीं की हैं सर, वो कंसेप्ट ही नहीं समझ आया अभी तक। हाँ, वो कॉन्सेप्ट अभी समझ नहीं आया, लेकिन अब क्लासेस खत्म हुई है, मैं भी इतना बिजी था। अब मैं जाऊंगा दुकान पे, मैं घर से निकल नहीं रहा था ना, तो और से कहूंगा भाई ये मुझे इसको चेंज करके दे। तो आप फिक्र ना करें, इन छुट्टियों में मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कि इसको आपको शेयर कर दूं, तो परेशान ना हो आप फिर पढ़ लीजिएगा। जी और सर, फिर कोई प्रॉब्लम हुआ जी तो इन छुट्टियों में मैं आई एम अवेलेबल, डोंट यू वरी अबाउट इट। आप छुट्टियों में भी मुझसे पूछ सर, सकते हो, तो मैं आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। So happy holidays. I hope you will have good health during those holidays as well. So थैंक यू सो मच। remain safe. So goodbye. मेरी क्रिसमस सर, आपको ईद मुबारक। बहुत अच्छे, ठीक हो गया। चलें, इससे पता तो चल गया ना, मैं ऐसे ही आपको मुस्लिम समझता रहा हूँ, तो मुझे कम से कम समझ आ गई। ठीक है जी, मैरी क्रिसमस। ओके, ऑलराइट, अल्लाह हाफिज सर। खुदा हाफिज।